Hello students, we were discussing the topic, the lesson number 5 of class 8 history, when people rebel 1857 and after. And we were discussing the topic here, the rebellion spreads. And we have left the topic here. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. ब्रिटिश जो थे इस वार में जो रिबेलियन जो रिवोल्ट विद्रोह हुआ था उसमें वो पीछे रह गए और जो रिबेल फोर्सेस थी विद्रोही जो फोर्सेस थी उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया एंड दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स और वो कई लड़ाइयों में ब्रिटिशर्स पीछे रह गए हार गए. दिस कन्विंस द पीपल, इस लोगों में ये विश्वास जाग गया कि जो ब्रिटिश का जो रूल है वो that had collapsed for good, वो अच्छे के लिए खत्म हो गया और उनमें ये आत्मविश्वास आया कि to take the plunge and join the rebellion, कि वो इस लड़ाई में कूद जाएं और साथ में इस रिबेलियन विद्रोह का एक हिस्सा बन जाए, अ पार्ट बन जाए. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th August 1857, we find a telegram sent by the Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The Jamidar had risen to oppose us. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वाइड स्प्रेड रिवोल्ट हो गया था जो कि बहुत ज़्यादा फैल गया था विद्रोह अवध के क्षेत्र में. 6 अगस्त 1857 में हम एक टेलीग्राम मिली है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने लिखी है अपने कमांडर इन चीफ को. उसमें कहा है कि ब्रिटिशर्स को अपनी उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है कि जो हमारे जो लोग हैं वो चारों तरफ से घिर गए हैं और फाइटिंग मतलब कंटिन्यूसली विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है. लोग जो हैं दे वर फाइटिंग अगेंस्ट देम और एवरी विलेज इज अगेंस्ट देम. उन सारे गांव वाले उनके अगेंस्ट हो गए हैं और जमींदार भी हमारे अगेंस्ट विरुद्ध खड़े हो गए हैं. दे डोंट वांट देयर ब्रिटिशर्स टू कंटिन्यू एंड thus they were revolting. Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, he prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a large force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors, they came together to wipe out the white people. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, he took charge of a large force of fighters who came to Delhi. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अहमदुल्ला शाह जो है एक मौलवी है फैजाबाद से, उसने भी ये लोगों को समझाया, उनको उपदेश दिए कि जो ब्रिटिश का जो रूल है दैट वुड कम टू एन एंड सून, वो खत्म हो जाएगा जल्दी. और ही लोगों की उस जो इमेजिनेशन को मतलब उनकी कल्पना को उसने साकार रूप दिया. ही उसने एक बहुत ज़्यादा नंबर के सपोर्टर्स जो फॉलोअर्स थे जो उसको उस पर विश्वास करते हैं उनको उन्होंने अपने साथ लेकर के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया. बहुत सारे रिलीजियस वॉरियर्स जो धार्मिक योद्धा होते हैं उन या फिर उनको गाजीज भी बोलते हैं, दे केम टुगेदर, वो सब मिल करके ब्रिटिश को वाइट पीपल को इंडिया से बाहर करने के लिए इकट्ठे हो गए. बख्त खान एक जो सोल्जर्स था जो बरेली से, वो उसने भी वो एक इंचार्ज बन गया और एक लार्ज नंबर ऑफ फाइटर्स जो थे दे केम टू दिल्ली एंड टू फाइट बैक.
He became a key military leader of the rebellion in Bihar. An old Jamidar Kunwar Singh, he also joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. The company fights back. Now हम अब देख रहे हैं कि जब ये विद्रोह हुआ तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने भी अपने तौर पर उस विद्रोह का विरोध किया और बट उनके जो स्पाइस थे वो वहां पर कम पड़ गए थे तो they got the supplies and they again fight back. Now this happens like that. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convinced with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor, Bahadur Shah Jafar, was tried in court and sentenced to life imprisonment. His sons were shot dead before his eyes. He and his wife, Begum Jinat Mahal, were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. जब कंपनी ने देखा कि ये जो अपहीविल है, जो अपराइजिंग, ये जो लोग जो उठ खड़े हुए हैं उनके अगेंस्ट, तो उस रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने और इंग्लैंड से आर्मी बुलाई गई और वो रीइंफोर्समेंट जो आर्मी थी वो उसको रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बुलाएगी. नए कानून पास किए गए ताकि कि जो रिबेल्स है, विद्रोही है, वो उनको कन्विंस किया जाए, मतलब उनको समझाया जाए कि और बहुत आराम से कि उनके हितों का कहीं भी उल्लंघन नहीं हो रहा और वो फिर दिल्ली जो कि स्टॉर्म सेंटर था, मेन सेंटर था रिवोल्ट का, वहां पर वो फोर्सेस वहां पर मूव करके दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया गया फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857. जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसकी सुनवाई हुई कोर्ट में और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, मतलब जिंदगी भर उसको जेल में ही काटने के लिए आजीवन जेल की सजा हो गई. उसके सन जो थे, बेटे थे, उनको दे वर शॉट डेड, उनको मार दिया गया उसकी आंखों के सामने ही. और उसकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल के साथ उसको रंगून जेल भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में और ही died in 1862 in Rangoon jail in November. The recapture of Delhi, however, didn't mean that the rebellion died after that. The people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. इस जो पॉपुलर विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने 2 साल तक कंटिन्यूस टाइम लिया इस विद्रोह को खत्म होने में. ये एकदम से खत्म नहीं हुई और ये चलती रही. लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. 1858 में लखनऊ को भी अपने अंदर ले लिया गया और रानी लक्ष्मीबाई, he was defeated and killed in June 1858. तांतिया टोपे, he escaped to the jungles of the central India. वो मध्य भारत के जंगलों में वो चले गए तांतिया टोपे और he continued to fight a guerrilla war with the support of many tribals and peasant leaders. He was captured, tried and killed in 1859 April. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने हरा दिया और वो मारी गई जून 1858 में. तांतिया टोपे जो जंगलों में जाकर छिप गए थे, उन्होंने गुरिल्ला वार छेड़ा. गुरिल्ला वार मतलब हिडन वार विद द सपोर्ट ऑफ जो ट्राइबल एनी और पीजेंट लीडर्स थे, किसानों के जो नेता थे और जो वेरियस ट्राइबल्स ग्रुप्स के लीडर्स थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने
ये गुरिल्ला वारफेयर छेड़ा और ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड, और उनका सुनवाई हुई कोर्ट में और उनको अप्रैल 1859 में उन्हें मार दिया गया. And just as victories against the British had earlier increased rebellion, the defeat of rebel forces increased desertion. The British also tried to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders who would be allowed to continue to enjoy traditional rights. जैसे कि जो जो जीती होती हैं वो फर्दर और विद्रोहों को उस प्रोत्साहित करती हैं, बट जो ये रिबेल फोर्सेस की जो हार थी इससे धीरे धीरे जो धीरे धीरे कमी सी आने लगी. जो लोग थे वो आर्मी छोड़ रहे थे और अपना प्लेसेस छोड़ के जाने लगे. जो ब्रिटिश ने भी इस लोगों को का भरोसा जीतने की कोशिश की. जो लैंडलॉर्ड थे जो कि दे वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, उनको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए गए, ट्रेडिशनल राइट्स दिए गए, मतलब उत्तराधिकार की वो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लैंड पर अपना अधिकार उनका रहेगा और वो कंटिन्यूसली उस पर राज करते रहेंगे. दिस वाज टू प्लीज द लैंडलॉर्ड्स and thus then those who had rebelled against, they were told that if they had to be submitted to the Britishers, if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. और बहुत सारे hundreds of सिपाही, रिबेल्स, नवाब और राजास को ट्राई किया गया कोर्ट्स में और उनको फांसी की सजा दे दी गई.